Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is anterior compartment of forearm. We have done with arm and the next subregion is starting. Now, what are the learning objectives? It is to understand the bones and muscle arrangement along with the formation of compartments in forearm. थोड़ा सा हम बोन्स के वो पार्ट जो इस फोरआर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन we'll discuss about the compartment formation and then the details of layer-wise arrangement of muscles of anterior compartment of forearm, their attachments, nerve supply actions as usual, the tabulated form, and then clinical anatomy related to this topic, which is compartment syndrome and a few of the injuries related to muscles. So forearm basically is this part of the upper limb, which is joining arm to the hand. Mainly it is formed of two bones. The lateral one, this bone is called radius and the medial one is ulna. These two bones are connected to each other by this strong connective tissue membrane called interosseous membrane. And proximally, there is this elbow joint. You have already learned about the details of elbow joint. तो उसकी details अभी फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. Distally, they are making this wrist joint. And then we are going to start the introduction of the bones of hand also, just to understand the attachments of forearm muscles. Here you can see that upper end of radius, it is rounded and it can rotate basically, and this is called head of radius. While upper end of ulna is like a wrench or a gauge, and it cannot move in a rotational movement, but it can move during the flexion and extension of elbow joint. So at superior radioulnar joint, the head of radius here can rotate. Inferiorly, the lower end of ulna is rounded with this posteromedial process. So basically, this part of the ulna, the lower part, this is the head of ulna. Still, the lower end of radius, it is going to rotate around the head of ulna, as ulna is the fixed bone here. It is responsible for the transmission of weight and force. The radius is responsible for the movements of supination and pronation. Ulna will remain fixed here, radius will rotate, upper end will rotate within this circle, and the lower end will rotate cross the ulna, and the forearm will move in pronation and supination. So basically these two bones and the interosseous membrane, they are important. Interosseous membrane जो है वो इन दोनों bones को, it will keep the two bones together at a distance, जो भी movement हो रही हो. लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस आप एल्बो जॉइंट में डिटेल कर चुके हैं. अगर हम शाफ्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास 1 मिनट. यस, सो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस सेक्शन में हमें आइडिया हो रहा है कि जो शाफ्ट है ह्यूमरस की, ये ट्रायंगुलर होती है. इट हैज मीडियल बॉर्डर, lateral border and anterior border. Here you can see this one is the anterior border and this is the medial border and this is the lateral border. Lower end से हमें आइडिया होता है कि medial और lateral parts कौन से हैं. Medially, at the lower end, the articular parts of humerus has this pulley like structure जो कि आपको ये नजर आ रहा है, जिसका मीडियल एज जो है दैट इज लोअर देन द लैटरल एज. दिस इज ट्रोक्लिया. ट्रोक्लिया जो है वो जॉइंट बनाएगा अल्ना के साथ. और कैपिचुलम जो कि राउंडेड प्रोजेक्शन है, लैटरल साइड पे है, दिस इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द सुपीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस. सो ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम आर द आर्टिकुलर पार्ट्स. इसके अलावा जितने नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स हैं, हियर यू कैन सी anteriorly we have coronoid fossa, radial fossa,
मीडियल साइड पे जो एक प्रोजेक्शन है विच इज सबक्यूटेनियस एंड वी कैन फील इट, दिस इज मीडियल एपिकंडाइल. लैटरल साइड पे जो प्रोजेक्शन है दिस इज कॉल्ड लैटरल एपिकंडाइल. मीडियल और लैटरल बॉर्डर जो शाफ्ट के थे दे बिकम द मीडियल एंड लैटरल सुप्राकंडाइलर रिजेस ऑफ लोअर एंड. सो दीज आर द पार्ट ऑफ लोअर एंड. पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे सिर्फ एक ही फोसा है और उसको हम ओलेक्रेनन फोसा कहते हैं. लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, मेरे पास अभी वो पिक्चर नहीं है, सो दैट शुड बी क्लियर. आप एक दफा एल्बो जॉइंट कर चुके हैं तो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस इज क्लियर. नाउ अपर एंड ऑफ रेडियस यू कैन सी हियर, ये सुपीरियर सरफेस है रेडियस की जो एल्बो जॉइंट में इन्वॉल्व होती है. दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड जो एनुलर लिगामेंट के साथ मिलकर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा. दिस पार्ट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जो कि नेक है. Below the neck there is a large roughening and elevated tuberosity which is called radial tuberosity. और radial tuberosity वो part है जहाँ पे हमने bicep brachiae की insertion पढ़ी थी, right? So this is the upper end of radius. Here you can see the upper end of ulna. ulna का ये जो process है जो कि स्क्रू गॉज की या रेंच की तरह का है, उसके आर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं trochlear notch. Now this trochlear notch is formed by two processes. This one process, this superior process here you can see is the olecranon process, and this anterior process which is projecting basically anteriorly is called coronoid process. So we have two processes, olecranon process and coronoid process. The anterior part of olecranon process and the superior part of coronoid process, they are going to form the trochlear notch जो कि elbow joint बनाएगी, right? On the lateral side of the coronoid process you can see here is the articular part which is called radial notch, जिसके margin पे start होके एक तरफ से start होके दूसरी तरफ आकर लिगामेंट लग जाता है और उस लिगामेंट के अंदर ही एनुलर लिगामेंट जिस उसके अंदर ही हेड रेडियस का जो हेड है वो रोटेट करता है. अभी मेरा ख्याल है लास्ट डायग्राम जो थी उसमें ये चीज क्लियर थी, मैं आपको दिखा दूं दोबारा. या यू कैन सी हियर एनुलर लिगामेंट रेडियल नॉच के एक बॉर्डर से स्टार्ट होके फिर उसके पोस्टीरियर एंटीरियर से स्टार्ट होके पोस्टीरियर बॉर्डर पे मार्जिन पे लग जाता है और इस एनुलर लिगामेंट के अंदर हेड ऑफ रेडियस पड़ा है और इसी ने इसके अंदर ही रोटेट करना है, राइट? So this is kind of a pivotal joint. Details हम जो है वो इन joints की जनरल एनाटॉमी में फिर देखेंगे. Now talking about the bones of hand, अभी इस वक्त सिर्फ मुझे उनके नाम बताने जरूरी है. हैंड की डिटेल, बोन्स की, उनकी अरेंजमेंट की, सारे स्ट्रक्चर्स की, ये हमने दोबारा से ये सब रिविजन करना है. अभी इस वक्त मैं इसलिए नाम बता रही हूँ क्योंकि कुछ मसल जो हैं दे आर गोइंग टू क्रॉस द रिस्ट जॉइंट एंड दे आर इंसर्टेड ऑन द बोन्स ऑफ हैंड्स, तो इनका पता होना जरूरी है. यू कैन सी हियर हेड ऑफ अल्ना, ये जो स्मॉलर है, दिस लार्जर वन इज द रेडियस. तो ये लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है. वी हैव these small bones जिनको हम कहते हैं carpal bones, ठीक है? there are 8 of them starting from medial side. थोड़ा सा जो एक anterior पड़ी हुई है वो है pisiform bone. उसके बैकग्राउंड में ये जो बोन एक पड़ी हुई है posteriorly, this is called triquetrum. Then we have lunate and then we have a boat like bone which is scaphoid. प्रॉक्सिमल रो ये है. पिसिफॉर्म थोड़ा सा एंटीरियर पड़ी हुई है, थोड़ा सा उससे पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है उसका कुछ पार्ट. ट्राइक्वेट्रियम, ल्यूनेट, स्केफॉइड, these 4 bones are the proximal row. उसके बाद आ जाती है डिस्टल रो. डिस्टल रो में मीडियल से ये लार्ज जो आपको बोन नजर आ रही है जिसपे एक हुक लाइक प्रोसेस भी नजर आ रहा है, दिस इज hamate and you can see labeled here hook of hamate, right? Then next to hamate is capitate, then we have trapezoid, and then we have trapezium. These are the 8 bones which are called carpal bones. अब इन बोन्स को भी इनमें से कुछ अभी हम देखेंगे किस तरह से उनकी जो है ना इन्वॉल्वमेंट होती है फोरआर्म के मसल्स को अपनी जगह पे रखने के लिए.
Then we have these miniature long bones. Miniature long bones उनको कहते हैं जिनके स्ट्रक्चर जो है वो long bones जैसा होता है, टू एंड्स शार्प, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है. सो दीज आर मिनिएचर लॉन्ग बोन्स. तो जो पाम वाले रीजन में मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं, दीज आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स. नंबरिंग हम हमेशा थंब वाले रीजन से करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पल जो कि थंब में होती है, लैटरल साइड पे. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल. सो वी हैव 5 metacarpals. Then we have 2 phalanges in thumb, but 3 phalanges in all other fingers. So we have proximal and distal phalanx in thumb, proximal, middle and distal phalanges in all the fingers. So there are total 14 of these phalanges, right? So these are the bones of hand. अब कार्पल बोन्स एक तरफ हमने कहा पिसिफॉर्म जो है वो थोड़ा सा एंटीरियरली पड़ी हुई है, इस तरफ हुक ऑफ हैमेट, इधर से जो ट्रेपीजियम का आपको ट्यूबरकल नजर आ रहा है वो थोड़ा सा एंटीरियरली है. तो इस अरेंजमेंट की वजह से जो कार्पल बोन्स है, अगर हम उनका क्रॉस सेक्शन देखें तो वो हमें ये इस तरह से कनकेव नजर आता है. इस अरेंजमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज लग जाएगा और सारे लॉन्ग टेंडन्स जो है वो मोस्टली इस कनकेविटी में से पास करते हैं. तो उनको अपनी जगह पर होल्ड करने के लिए ये कनकेव अरेंजमेंट है और साथ ऊपर एक लिगामेंट लगा है. तो ये एक टनल सी बन गई है, ठीक है, विच इज कॉल्ड कार्पल टनल. हियर यू कैन सी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बोन्स है, कार्पल बोन्स, ये उनकी कनकेव अरेंजमेंट है, ठीक है. एंड हियर इज द लिगामेंट जो आपको ये अटैच हुआ हुआ नजर आ रहा है. इन दोनों पार्ट्स पे पिजिफॉर्म हुक ऑफ हैमेट पे एक तरफ लगा हुआ है, एक तरफ ये ट्यूबरकल जो है ट्रेपीजियम का, और स्केफॉइड का भी एक छोटा सा ट्यूबरकल है. बेसिकली इन पे ये लगा हुआ, ठीक है, इन पे ये लगा लिगामेंट ये अटैच हुआ हुआ, एंड दिस इज फॉर्मिंग दिस कार्पल टनल. और इस टनल में से ये सारे लिगामेंट्स जो है ना आपको पास करते हुए नजर आ रहे हैं, टेंडेंस, राइट. सो दिस अरेंजमेंट इज हेयर एट द लेवल ऑफ रिस्ट टू होल्ड ऑल द लॉन्ग टेंडेंस इन देयर प्लेसेस. इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी. सो 1 minute. So compartment formation, again जिस तरह हमने आर्म में पढ़ा कि बोन है, जस्ट अंडर द स्किन वी हैव द लेयर ऑफ डीप फेशिया जो कि एक कंप्लीट स्लीव बना रही है, और डीप फेशिया से जो आती हैं शीट्स जो कि आके बोन पे अटैच हो जाती हैं, दीज आर इंटरमस्कुलर सेप्टा. सो हमने कहा था कि ह्यूमरस है, मीडियल लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है, और डीप फेशिया की ये जो स्लीव है ये आर्म को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. नाउ देयर आर 2 बोन्स इन फोरआर्म. उनमें से अल्लाह के अगर आप ये देखें कि मीडियल बॉर्डर और काफी हद तक पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस, दिस इज सबक्यूटेनियस. तो इस तरफ कोई आपको इंटरमस्कुलर सेप्टम नजर नहीं आएगा. डायरेक्टली जो स्लीव है डीप फेशिया की वो अल्लाह के साथ इस बॉर्डर पे अटैच हुई हुई है, राइट. सो वी हैव द स्लीव ऑफ डीप फेशिया अंडर स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया. फिर वी हैव अल्लाह, उसका मीडियल बॉर्डर इधर डायरेक्टली क्योंकि स्लीव के साथ अटैच हुआ है, देयर इज नो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम. द 2 बोन्स radius and ulna, they are attached to each other by interosseous membrane. तो ये interosseous membrane दरमियान में एक septum बन जाती है, separation बन जाती है, and then from the lateral border of a radius we have lateral intermuscular septum. So lateral intermuscular septum, interosseous membrane, and these 2 bones, radius and ulna, ये जो एक partition है, these are going to divide the forearm muscles into 2 functional groups, anterior compartment muscles and posterior compartment muscles. Anterior और posterior compartment muscles को हम purely flexor muscles नहीं कह सकते क्योंकि anterior compartment में flexors के साथ साथ हमारे पास pronators भी हैं, और posterior compartment जो है उसमें हमारे पास extensors के साथ साथ supinators भी हैं. So आपकी KLM में जो basically term use होती है वो है anterior compartment और flexor pronator compartment, posterior compartment और extensor supinator compartment. तो यही टर्म आप फिर यूज करें, राइट.
जी। सो दीज आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये आपको अरेंजमेंट नजर आ रही है, ये आपको सेक्शन में 2 बोन्स नजर आ रही हैं, रेडियस एंड अल्ना। ऑल ऑफ द मसल्स दैट आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन, जो इन बोन से और इंट्रोस्टस मेम्ब्रेन से बन रहा है, ये एंटीरियर वाला सारा जो पार्ट है, दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म जो है उसमें वी हैव 9 मसल्स। उनमें से 5 जो है वो आपको सुपरफिशियल लेयर्स में नजर आएंगे, ठीक है। 4 अभी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैं अभी आपको अरेंजमेंट टोटल बताती हूँ। बाकी जो 3 मसल्स हैं वो डीप है। और आपकी जो KLM है, बाकी बुक्स पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, KLM में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, और हम KLM को फॉलो करेंगे, आप लोग बाकी बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे। KLM के अकॉर्डिंगली ये जो मसल है दे आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, ठीक। यू कैन सी हियर के पीछे लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस से बेसिकली इनका स्टार्ट होता है। एक्सटेंसर और जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट्स हैं फोरआर्म के, या फ्लेक्सर प्रोनेटर या एक्सटेंसर सुपिनेटर कंपार्टमेंट्स, उनका आपने एक कॉमन पॉइंट ये याद रखना है कि जो फ्लेक्सर प्रोनेटर कंपार्टमेंट है उनका जो कॉमन ओरिजिन है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल, ठीक है, जिसको हम कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। इसको मीडियल एपिकंडाइल भी कहते हैं, इसको कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन भी कहते हैं। लैटरल एपिकंडाइल से जो मसल अराइज करते हैं वो पोस्टीरियरली डाइवर्ट करते हैं और वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल बनते हैं। सो लैटरल एपिकंडाइल जो है वो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। और डीप मसल्स, डीप जो 3 मसल्स हैं वो ह्यूमरस से नहीं आ रहे, वो रेडियस अल्ना से ओरिजिनेट करे हैं। बाकी जो सुपरफिशियल मसल्स हैं उनका एक एक हेड जो है, जिनके सिंगल हेड्स हैं वो तो सारे इधर मीडियल एपिकंडाइल से आ रहे हैं, जिनके डबल हेड्स हैं उनमें से एक हेड जो है वो मीडियल एपिकंडाइल से अटैच होता है और दूसरा हेड जो है ना वो फोर आर्म की बोन से अटैच हो रहा है, राइट। सो ये हम अरेंजमेंट देखेंगे। पहले तो देख लें कि ये किस तरह से लेयर वाइज अरेंजमेंट है, ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी यहाँ पर जो क्यूबिटल फॉसा हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रंट ऑफ एल्बो जो है वहां पर ये डिप्रेशन सा है, ठीक है, उसमें मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व है, और सेंट्रल पार्ट से इसकी जो कनकेविटी है वहां से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, यानी मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से पास कर रही है, राइट। बाइसेप का टेंडन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ये एक मसल है ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियोरेडियालिस लैटरल कंडाइल से ही आता है, लैटरल एपिकंडाइल से, और ये यहाँ पर पोस्टरोलेटरल साइड पे ही रिस्ट पे अटैच हो रहा है। लेकिन ये मसल डेवलपमेंट के दौरान में है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल, लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के पीछे ही पड़ा हुआ है। ये जो लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आपने ये देखा भी पहले भी कि लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम इस तरह थोड़ा सा एंटीरियरली पुश हो गया है, क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट इसका जो मसल का जो बल्क है वो एंटीरियर की तरफ पुश हो गया। तो ये लैटरल आपको ये इस तरह नजर आ रहा है, और ये जो मसल इसको पुश कर रहा है दिस इज द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ब्रेकियोरेडियालिस मसल वाहिद मसल है जो कि फ्लेक्सर है एल्बो का, लेकिन ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म का मसल है। डेवलपमेंट के दौरान इसका बल्क जो है वो एंटीरियरली पुश होता है, और ये आपको मसल एंटीरियर ही नजर आएगा, राइट। सो इसको छोड़ के बाकी ये जो सारे मसल्स हैं दीज आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। तो ये वही यहाँ पर जो इसने यहाँ पर ये ऑरेंज में दिखाया हुआ है, दिस इज ब्रेकियोरेडियालिस। ये मसल जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है, लेकिन ये हमें नजर एंटीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल पार्ट में आएगा। सुपरफिशियली वी कैन सी 4 मसल्स, 1 2 3 4। इनके नाम है प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो कि लैटरल साइड पे लग रहा है, रिस्ट का फ्लेक्सर। सेंटर में ये जो आ रहा है पामेरिस लॉन्गस, ये पाम में जाके स्प्रेड हो जाएगा, इसका नाम है पामेरिस लॉन्गस। और जो मीडियल साइड पे है रिस्ट का फ्लेक्सर, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। दीज 4 मसल्स मेक द सुपरफिशियल लेयर। नाउ KLM में स्पेशली ये जो इन 4 मसल्स को जब हम रिमूव करते हैं तो ये एक मसल हमें नजर आता है दरमियान में, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। डिजिट्स तक जो है ना इसके टेंडन पास करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। दिस इज गोइंग टू मेक द इंटरमीडिएट लेयर। इसको रिमूव करेंगे तो वी कैन सी 3 डीप मसल्स।
रेडियस से जो आपको मसल नजर आ रहा है, जो थंब की साइड पे जा रहा है, थंब के ऊपर जो भी अटैचमेंट होगी उसके लिए हम वर्ड पढ़ेंगे पॉलिसिस. So flexor pollicis longus is the long flexor of thumb, and flexor digitorum profundus is the deep flexor of digits. Superficial flexor ये था, flexor digitorum superficialis, और deep जो है वो ये है, right? इन दोनों मसल के बैकग्राउंड में ही यहाँ पे छुपा होता है, लेकिन ये डीप लेयर का ही मसल है, प्रोनेटर quadratus. So these three muscles, they are basically originating from forearm bones, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस तो इधर ही रह जाता है, लेकिन ये जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और डिजिटोरम प्रोफांडस है, ये क्रॉस कर रहा है सारे हैंड की बोन्स को, और यहाँ पर डिजिट्स पे जाके फेलेंजेस के लेवल पर अटैच हो रहा है. सुपरफिशियलिस भी उसी तरह से डिजिटल है, क्योंकि टेंडेंजेस ये डिजिट्स के ऊपर एक्ट करने वाला मसल है, तो ये भी फेलेंजेस पे अटैच होगा. बाकी ये 4 मसल जो है ना वो हमें सुपरफिशियल लेयर में नजर आते हैं. वन बाय वन हमने इनकी डिटेल्स करनी है. ओके जी, सो यू कैन सी अगेन ब्रेकियोरेडियलिस, जो कि पोस्टीरियर साइड का मसल है, हमें यहाँ नजर आ रहा है. ये क्यूबिटल फोसा की आपको बाउंड्रीज नजर आ रही हैं. ओके, ये मीडियल लैटरल एपिकंडाइल के दरमियान में जो इमेजिनरी लाइन है, ये ट्रायंगल होता है. लैटरल साइड पे ब्रेकियोरेडियलिस है, और मीडियल साइड पे जो मसल है, दिस इज प्रोनेटर टीरीज, द फर्स्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द सुपरफिशियल ग्रुप. सेकेंड मसल इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, सेंटर में जो पाम में आके स्प्रेड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड पामेरिस लॉन्गिस, एंड जो मीडियल वाला है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. और इनमें से याद रखना है आपने ये कि प्रोनेटर टीरीज जो है वो शॉर्ट मसल है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस रिस्ट, ये सिर्फ एल्बो को क्रॉस करे. ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो है वो इस टनल को क्रॉस करके तो फिर कार्पल बोन्स पे अटैच होता है. पामेरिस लॉन्गिस का आपने ये याद रखना है कि ये इस टनल के अंदर से नहीं गुजरता, उससे सुपरफिशियल ही रहता. ठीक है, राइट. और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस भी वो टनल में से पास करता है. कार्पल टनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लेक्सर टेंडेंस है वो कार्पल टनल में से पास करते हैं. अब इस टनल के होने की भी इंपॉर्टेंस तो यही होगी कि इस तरफ बल्की पार्ट है मसल का, फिर लॉन्ग टेंडेंस है, और लॉन्ग ट्रेवल करने के बाद जो है ना वो हैंड तक पहुंच रहे हैं. हैंड के लेवल पर और लोअर एंड ऑफ फोरआर्म के लेवल पर अगर आप देखें तो बल्क बहुत कम हो गया, और ज्यादा टेंडिनस पार्ट और कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट नजर आ रहा है, और आपको न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएंगे कि वो पास कर रहे हैं. ठीक है, जब बल्क हैंड से और लोअर एंड ऑफ फोरआर्म से कम हो जाएगा, तो हमने सारा का सारा जो वर्क है वो हैंड से जब लेना है, अगर हैंड्स आर बल्की एंड दे आर नॉट एफिशिएंट, तो फिर फोर्स लगाना मुश्किल हो जाती है. ये जो लॉन्ग टेंडन है, इनको यहाँ पे बाइंड करने का फ्लेक्सर टनल में मकसद क्या होता है कि लीवर वाला इफेक्ट जो है ना वो अच्छा होता है, और फोर्स अप्लाई करना जो है ना वो ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंटली फोर्स अप्लाई की जा सकती है. ठीक है, दे आर बाउंड एट दिस लेवल, और उसके बाद एक्ट कर रहे हैं हैंड की बोन्स पे. पीछे मसल बल्क यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये टेंडन जब पुल होते हैं तो फोर्स जो है ना वो अप्लाई होनी है हैंड की बोन्स पे. ठीक है, वहां के जॉइंट्स की मूवमेंट होनी है. तो यहाँ पे बाइंड करने का मकसद ये है कि वो लीवर वाला एक इफेक्ट आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, टेंडेंस की सारी फोर्स जो है ना वो उस जॉइंट पे एक्ट करने पे लगेगी, टेंडेंस खुद अपनी जगह से नहीं हिलेंगे. ठीक है, तो कोई भी फोर्स जो है वो डिस्पर्स नहीं होगी, सारी की सारी फोर्स उसी जॉइंट पे एक्ट करेगी. और अभी चलो ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन विद द मसल्स. दिस इज प्रोनेटर टीरीज, द फर्स्ट मसल. प्रोनेटर टीरीज हैज 2 हेड्स. तो अब 2 हेड्स है तो ऑब्वियसली एक हेड जो है वो ह्यूमरल हेड होगा, दैट वुड कम फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, जिसे हम कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन कहते हैं. अल्नर हेड जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. सो इट हैज अ ह्यूमरल हेड एंड अल्नर हेड. यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है और इंसर्ट करता है ऑन radius on the lateral surface of middle of the radius, right? This muscle is supplied by median nerve. मैं आपको collectively एंड पे बता दूंगी कि nerves basically किन किन muscles को किस तरह सप्लाई कर रही हैं. अभी आप इसको बस go through कर लें.
प्रोनेटर टीरीज है, यहाँ से ओरिजिन है, लैटरल साइड पे इंसर्शन है, राइट। ये ह्यूमरस को इस तरह से पुल करेगा एंड इट विल हेल्प ह्यूमरस, सॉरी ह्यूमरस कह रही हूँ, रेडियस, इट विल हेल्प रेडियस टू मूव टूवर्ड्स दिस साइड। हेड रोटेट करता है इस तरह से, राइट, और जो लोअर एंड है वो पूरा का पूरा मूव करके क्रॉस बना लेता है अल्ना पे। ये सारी पोजीशन भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी। सो प्रोनेटर टीरीज का जो मेन एक्शन है दैट इज प्रोनेशन, और प्रोनेशन में इट इज गोइंग टू रोटेट अपर एंड ऑफ रेडियस इन द रेडियो अल्नर जॉइंट सुपीरियर, और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे ये क्या करेगा, लोअर एंड ऑफ रेडियस को पूरा का पूरा जो है ना वो क्रॉस करवा देगा अल्ना पे, राइट। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ प्रोनेशन। क्योंकि एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है ह्यूमरल हेड, सो इट कैन एक्ट एज अ वीक फ्लेक्सर ऑफ elbow joint, right? So it is a weak flexor and the main action है that is pronation at superior and inferior radial ulnar joints. It is going to help pronator quadratus muscle, that is another pronator. तो दो प्रोनेटर्स हैं, उनमें से प्रोनेटर टीरीज का हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक। प्रोनेटर टीरीज की एडिशनल एक पॉइंट जो है वो क्या है जी, कि अभी हम देखेंगे जब न्यूरोवास्कुलर बंडल, तो जो मीडियन नर्व है वो पास करते हुए फ्रॉम आर्म टू फोर आर्म प्रोनेटर टीरीज के टू हेड्स के दरमियान में से पास करती है। सो अगर मीडियन नर्व प्रोनेटर टीरीज मसल अगर स्पैज्म करता है तो मीडियन नर्व के कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं, राइट। सेकेंड सुपरफिशियल मसल इस पार्मेरिस लॉन्गिस। पार्मेरिस लॉन्गिस जो है वो 40% लोगों में जो है वो एब्सेंट हो सकता है, दोनों साइड पे एब्सेंट हो सकता है, ज्यादातर लेफ्ट साइड पे एब्सेंट होता है, ठीक है। सो कुछ लोगों के ख्याल में ये थोड़ा सा वेस्टिजियल भी है मसल, इसका कुछ पार्ट। सो ये इट हैज स्मॉल बेली, एक ही हेड है स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल, इस लेवल पर आके रिस्ट के लेवल पर पामेरिस लॉन्गिस डज नॉट पास थ्रू कार्पल टनल, ये कार्पल टनल से सुपरफिशियल पास करता है, ठीक है। मैं अभी आपको इसकी क्रॉस सेक्शन अगर मैं वही वाला दिखा दूं, राइट, नो, चलो नेक्स्ट मैंने आपके लिए क्रॉस सेक्शन की डायग्राम रखी हुई है तो उसमें दिखा देती हूँ, राइट। सो डिस्टल लेवल पर अगर आप देखें तो दिस tendon of palmaris longus there it is going to be attached superficially on the flexor retinaculum, ये flexor retinaculum नजर आ रहा है, और जितने बाकी tendons हैं और structures हैं वो आपको flexor retinaculum से deep जाते हुए नजर आ रहे हैं। palmaris longus is the tendon of palmaris longus is present superficial to flexor retinaculum और उसके साथ भी अटैच होता है, और फिर ये इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है जो यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में ये स्प्रेड हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि पामेरिस लॉन्गस का ही टेंडन है जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ अटैच होता है और उसके बाद फिर पाम में जाने के बाद इट स्प्रेड्स आउट लाइक दिस। और कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ स्ट्रक्चर इन पाम जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है जिसको हम पामर एपोन्यूरोसिस कहते हैं। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसकी एपेक्स पे पामेरिस लॉन्गस टेंडन की अटैचमेंट है। सो आइदर वेज जैसे भी आप कह लें कि पामेरिस लॉन्गिस टेंडन जो है वो इंसर्ट कर जाता है ऑन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एपेक्स ऑफ पामर एपोन्यूरोसिस, या आप इस तरह से कह लें कि पामर एपोन्यूरोसिस इज फॉर्म्ड बाय द पामेरिस लॉन्गिस टेंडन, कि वो बाद में स्प्रेड कर जाता है। पामेरिस लॉन्गिस की डिटेल हम जो है ना ये हैंड में करेंगे, लेकिन सारे स्ट्रक्चर से सुपरफिशियली जस्ट अंडर द स्किन ये डीप एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, काफी डेंस स्ट्रक्चर है, और अगर आप ग्रिपिंग के दौरान में पाम की स्किन देखें तो उसकी जो बेसिकली रफनिंग होती है और ग्रिप में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए स्किन को थोड़ा सा और रिंकल करने के लिए ये पामेरिस लॉन्गिस वाला ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फ्लेक्शन के दौरान में जो है वो डिजिट्स की जब मूवमेंट हो रही होती है और ग्रिप वाली एक फिंगर्स क्लोज करके हम बनाते हैं, उसमें पामर एपोन्यूरोसिस बेसिकली फोर्स इंक्रीज करता है, ग्रिप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है बाय रफनिंग द स्किन। सो दिस इज पामेरिस लॉन्गस मसल।
palmaris longus जो है it is a flexor of wrist joint and a weak flexor of elbow joint. Nerve supply is from median nerve. All right, the next muscle, third muscle जो हमने पढ़ा, we started from medial to lateral. पहले था pronator teres, then we had palmaris longus, then we have flexor carpi radialis. Carpus पे यानी carpal bones पे ये muscle एक्ट करेगा और ये फ्लेक्सर है और ये रेडियल साइड का फ्लेक्सर है. ठीक है, एक फ्लेक्सर जो है वो मीडियल साइड पे लगना है और एक रेडियल साइड पे लगना है. ठीक, सो बेसिकली दिस इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल. ओरिजिनल इसका वही है, एक ही हेड है. फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, इंसर्शन इज ऑन द बेस ऑफ सेकंड मेनली, और एक एक्सटेंशन जो है वो थर्ड पे भी जा सकती है. सो मेनली इट इज इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ the lower end is called the base, the upper end of the metacarpal is called the head. So it is inserted on the palmar aspect of base of second metacarpal. Action क्या होगा? It is crossing elbow joint, तो weak flexor है elbow joint का, and it is crossing the wrist joint, और distal attachment जो है वो इसकी wrist joint के करीब है, तो ये wrist joint पे action कर रहा है. और ये जितने भी माइनर जॉइंट्स हैं उन पे भी स्लाइट मूवमेंट्स होती है. तो जितने जॉइंट्स को ये मसल क्रॉस करे उन पे मूवमेंट्स करेंगे, लेकिन प्राइमरीली इट इज अ फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट जॉइंट. नर्व सप्लाई इज फ्रॉम मीडियन नर्व, राइट? ओके, sorry, I have missed, I guess, flexor carpi ulnaris, right? So the fourth muscle is flexor carpi ulnaris, which is the medial most muscle. इनमें से सुपरफिशियल जितने मसल हैं मैं आपको बता दूं, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. इनमें से प्रोनेटर टीरीज एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस दे हैव टू हेड्स. फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और पाल्मारिस लॉन्गस जो है ना वो सिंगल हेड्स के साथ है. तो जो वन हेड है दैट इज फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल, और जो सेकेंड हेड है प्रोनेटर टीरीज का था दैट वाज फ्रॉम ulna. And here we discuss flexor carpi ulnaris, तो उसका जो second head है that is also from ulna, right? So superficial muscles में से two muscles have single head, two muscles have double head, one is humeral head and one is ulnar head. This humeral head is from medial epicondyle, ulnar head is from the superior process. जो olecranon process हमने देखी थी उसके medial side से ये अल्नर हेड इसका आ रहा है. ठीक है, नाउ द टू हेड्स दे जॉइन ईच अदर एट द लेवल ऑफ बेली. अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ह्यूमरल हेड और अल्नर हेड जो है, जैसे प्रोनेटर टीरीज का था उसी तरह से इस ह्यूमरल और अल्नर हेड के दरमियान में भी एक गैप है. ये जो गैप है इसको हम क्यूबिटल टनल कहते हैं, क्योंकि ये एल्बो की मीडियल साइड पे. और important बात क्या है कि after passing from behind the medial epicondyle, ulnar nerve is going to pass through this tunnel and come anteriorly. Ulnar nerve lower इस cubital fossa के level पर ulnar nerve posterior compartment में जा चुकी है. posterior compartment से medial epicondyle के पीछे से होते हुए इसने इस cubital tunnel से, यानी ये दोनों heads के दरमियान में जो gap है इससे पास करना है और फिर anterior compartment में enter होना है. और anterior compartment में भी ये बिल्कुल flexor carpi ulnaris के साथ साथ होगी. So this muscle is very important as it is going to give passage to ulnar nerve, and it is also helpful to locate the position of ulnar nerve and ulnar artery. ठीक, तो medial most ये जो muscle है this is flexor carpi ulnaris with two heads, humeral and ulnar heads. Insertion flexor carpi ulnaris जो है उसकी थोड़ी सी दो तरह से डिस्क्राइब की हुई है. एक ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि जी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की जो इंसर्शन है दैट इज ऑन हैमेट बोन, और उससे ये जो है ना वो उसकी एक्सटेंशन है मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल के ऊपर ही, जिसको हम पिसोहैमेट लिगामेंट कहते हैं. ठीक है, और पिसिफॉर्म बोन जो है दैट इज अ सेसमोइड बोन इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. सेसमोइड बोन कौन सी होती है? A bone which develops within a tendon of a muscle. This is called sesamoid bone. So it is not a separate carpal bone. It is considered pisiform
जो कि एंटीरियर पड़ी हुई है, उस कार्पल बोन्स के प्लेन से डिफरेंट ही प्लेन में पड़ी हुई है तो कार्पल बोन, लेकिन इसको ये कंसिडर किया जाता है कि दिस इज अ सेसमॉइड बोन, राइट। सो एक तो हम इंसर्शन में ये बता सकते हैं कि जी जो टेंडन है दैट इज अटैच्ड ऑन हैमेट, और पिसिफॉर्म इसके अंदर एक सेसमॉइड बोन है, और इसका एक लिगामेंट जो है ना वो मेटाकार्पल पे भी अटैच हो रहा है। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है दैट इज अटैच्ड ऑन पिसिफॉर्म बोन, और उससे मीडियल और लैटरल साइड पे एक्सटेंशंस निकलती हैं, जो हैमेट पे अटैच होती है उसको हम पिसो